Hello, good morning, students. I am Kamaljit Singh. I will. I'm going to teach you the subject FW, that is Fundamental of Electrical Engineering. It means we are going to discuss the basic of electricity. Now, first, what is electricity? What is electricity? What is electricity? Electricity plays very important role in our daily life. We cannot survive without electricity. The primary application we are using, that is lighting. Lighting. Here in this room, I am using artificial light by electrical energy. Now in this room, we are converting electrical energy into light energy. Same, this is primary application. Second is very important nowadays, communication. Communication. We all have mobiles. In mobile, we are using battery. Battery is a source of DC supply. So all our mobiles working on electricity, that is DC. So communication is also a very important application of electricity. Third is transportation. Electric trains. In electrical trains, we are using electrical motors. That electrical motor is a device which convert electrical energy into mechanical energy. With the help of motors, we are running trains. So train are used to transport the material. Clear? And the fourth application is, you can say, heating. In our houses, we all having geyser. What geyser do? Geyser will convert electrical energy into heat energy. Electrical energy into heat energy. So that is heating. And fifth one is welding. Welding. In this process, we used electrical energy to make the joint of metals. मेटल के ज्वाइंट बनाने के लिए हम क्या करते हैं? वेल्डिंग करते हैं. दो मेटल को ज्वाइंट करना तो आपको वेल्डिंग करनी पड़ेगी. सो दीज आर द बेसिक एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. हम सब इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं, बहुत ही हम इसके साथ फैमिलियर हैं. सो नाउ व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ओवर अदर टाइप ऑफ एनर्जी? किसी और एनर्जी से अगर हम कंपैरिजन करें तो इलेक्ट्रिसिटी के क्या एडवांटेज है? एक देखिए, हमें गर्मी लग रही है, सिर्फ एक स्विच दबाते हैं हम. स्विच दबाने से हमें क्या मिलता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं? इनटू विंड एनर्जी. तो एक इसका कंट्रोल बहुत ही मुश्किल है. सेकंड इज, इट इज वेरी चीप एंड नीट एंड क्लीन. नीट एंड क्लीन से क्या मतलब है? नीट एंड क्लीन का मतलब है ड्यूरिंग यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे कोई धुआं नहीं प्रोड्यूस होता, इलेक्ट्रिसिटी कोई नॉइज नहीं प्रोड्यूस करती, कोई एनवायरमेंटल फ्रेंडली है इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी, अगर आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज कर रहे हो तो वहां से आपका धुआं नहीं निकलेगा. फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में क्या होता है? मोटर होती है. मोटर नॉइजलेस होती है और पोल्यूशन भी नहीं होता. तो ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है हमारी, ये बहुत ही एनवायरमेंटल फ्रेंडली है. थर्ड जो एडवांटेज है इसकी, वी कैन ट्रांसफर इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहीं भी जनरेट हो रही है. फॉर एग्जांपल, जो हमारा रिसीविंग स्टेशन है उससे दूर है हमारा जनरेटिंग स्टेशन जहां पे बिजली बन रही है, उससे हमारा दूर है. वो है अप्रोक्सीमेट, मान लेते हैं 500 किलोमीटर. तो वी कैन ट्रांसफर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी विद द हेल्प ऑफ कंडक्टर्स, ट्रांसफार्मर easily. We can transfer easily, or controlling, operation, maintenance, all are easy. We can control the electricity just one switch. In our house we are using switch for fan, mixie, electric iron. So these are the advantage of electrical energy. So further moving, we are going to discuss the very important topic of this chapter, this subject, that is atomic structure. Atomic structure. What is the atomic structure?
atomic structure. There are so many theories given by scientists. For example, first theory is given by Thomson, then Rutherford, then the final we will discuss here theory given by Neil Bohr. The scientist name Neil Bohr atomic theory. According to this theory, every element consists of atoms. Atoms are the smallest particle. छोटे छोटे एटम से मिलके एक एलिमेंट बनता है. ये हमें इस साइंटिस्ट ने बताया. एवरी एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ एन atoms. He said that there are electrical particles in an atom. एक एटम में इलेक्ट्रिकल पार्टिकल्स होते हैं. That is positively charged, negatively charged and neutral. For example, he said that every atom has center part, that is nucleus, और इसी में हमारे पॉजिटिव चार्ज होते हैं, that is प्रोटॉन, और इसके अराउंड ऑर्बिट्स में हमारे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं, that is इलेक्ट्रॉन. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, जो एटम की इसने कंस्ट्रक्शन बताई कि इसके सेंटर पार्ट में न्यूक्लियस होता है जिसमें न्यूट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं, और ये जो इसके सराउंड ऑर्बिट्स हैं इनमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं इन अ प्रॉपर मैनर. जैसे हमारे सोलर सिस्टम में सन के अराउंड हमारे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, सेम इसी मैनर में इसने हमें क्या बताया कि एक जो एटम है, जो एलिमेंट का एक छोटा सा पार्ट है, उसकी कंस्ट्रक्शन क्या है कि उसके सेंटर में जो कहा जाता है दैट इज न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन होते हैं और पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन होते हैं, और इसके अराउंड हमारे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं इन अ प्रॉपर मैनर. और एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट, किसी भी एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, उतने ही हमारे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं. According to this theory, number of proton equal to number of electron. Therefore, an atom is neutral in nature. कोई भी एक एलिमेंट का छोटा सा पार्ट जो हमारा एटम है वो नेचर में क्या होगा, न्यूट्रल होगा. न्यूट्रल इन नेचर. So we are going to take the example of copper. Copper is a conductor most widely used in electrical system. So according to this theory, we are प्रोटॉन्स. जितने इलेक्ट्रॉन्स है उतने ही प्रोटॉन. Bohr, Neil Bohr, scientist. So there is a formula of electron distribution, that is 2n square. अब हमारे पास क्या है, अगर हम कॉपर की एग्जांपल ले रहे हैं, कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 है, 29 ही प्रोटॉन है और 29 ही इलेक्ट्रॉन्स है. तो हमने ये जो प्रोटॉन है कहाँ पाए जाएंगे, न्यूक्लियस में, सेंटर पार्ट ऑफ द एटम. यहाँ पे 29 प्रोटॉन है पॉजिटिवली चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाएंगे, ऑर्बिट में. ये हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के रिस्पेक्ट में दिस इज ऑर्बिट नंबर 1, ऑर्बिट नंबर 2, ऐसे ही होगा हमारा ऑर्बिट नंबर 3 एंड सेम ऑर्बिट नंबर 4. विद इस न्यूक्लियस को देखते हुए हमारा ऑर्बिट नंबर ये है 1, 2, 3. इसको नाम भी दिया है, दैट इज KLM, K shell, L shell और M shell. According to theory, the negatively charged particles are rotating in
orbits. So here we are going to distribute the electrons by taking the example of copper atom. So copper, this is the symbol of copper, atomic number 29. So here is the construction of atom according to Bohr atomic theory. This is nucleus, 29 positive. This is orbit number 1. So number 1 orbit में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? So we are going to use this formula, that is 2n square, electron distribution formula in orbits, where n is equal to क्या है? 1. So 2 into 1 square 2. तो पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स. 2 इलेक्ट्रॉन्स. Now this is orbit number 2. Same, I am using the same formula. 2 into 2 square 8. So here in orbit number 2, maximum electron 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. थोड़ा अनसिमेट्रिकल हो गया यहाँ पे हम. This is 8 इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड ऑर्बिट. टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए 10. मैक्सिमम कितने होते हैं इसमें? 29. सो इन थर्ड ऑर्बिट 2 into 3 square, that is 18. तो थर्ड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. टोटल कितने हो गए? टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 28. अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला फोर्थ में कितने होने चाहिए? 2 into 4 स्क्वायर. कितने होने चाहिए? 32. तो जो फोर्थ ऑर्बिट है उसमें अकॉर्डिंग टू थ्योरी होने कितने चाहिए? अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला 32. लेकिन कॉपर में कितने हैं? एटॉमिक वेट क्या है? 29. तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बचा, वो हमारा फोर्थ ऑर्बिट में आ गया. तो यहाँ पे देखो, एक ये कॉपर एटम की कंस्ट्रक्शन है. ये एक कॉपर की एटम है अकॉर्डिंग टू बोहर एटॉमिक थ्योरी. उसने हमें बताया है कि एक एटम का सेंटर पार्ट होता है, वो होता है न्यूक्लियस. उसी में पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं और उसके अराउंड प्रॉपर मैनर में ऑर्बिट्स में हमारे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं. इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन करने का फार्मूला दैट इज 2n स्क्वायर. एन का वैल्यू 1 भरोगे, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में 18. टोटल हो गए 28. लास्ट में बचा एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 29 इलेक्ट्रॉन है, वो हमारा फोर्थ ऑर्बिट में आ गया. तो दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉपर एटम. कॉपर की एक एटम की ये कंस्ट्रक्शन है, एक एटम की. ऐसी हजारों करोड़ों एटम से मिलकर एक कॉपर का छोटा सा पीस या एलिमेंट तत्व बना होता है. ठीक है. सो इस इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं? जो लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन बचता है, ये हमारा क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन. होने 32 चाहिए. अगर 32 होते तो ये जो हमारा ऑर्बिट है ये कंप्लीटली फील्ड होता. कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिट. जैसे ये है, इसमें 2 है तो 2 फील्ड है, इसमें 8 है तो 8 फील्ड है, इसमें 18 होने चाहिए, 18 फील्ड है. लेकिन इसमें 32 होने चाहिए, है कितना? 1. तो दिस इज अनकंप्लीटली फील्ड ऑर्बिट. अब एक बात और है, हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स हैं ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है. तो जितना नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है उतने ही पॉजिटिव. तो दोनों एक दूसरे को जो है, नेट चार्ज क्या हुआ बॉडी पे? इस एटम की एक कॉपर पे नेट चार्ज क्या है? 0, क्योंकि जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है. तो नेट चार्ज हमारा क्या हुआ? 0. तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारी जो एक एटम है वो नेचर वाइज, कुदरती तौर पे वो न्यूट्रल होती है. न्यूट्रल क्यों होती है? क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, जितने नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं उतने ही पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं. ये थ्योरी हमें समझना बहुत जरूरी है आगे जाने के लिए. सो अब एक बात और है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये ऑर्बिट नंबर 1 में, इनमें जो डिस्टेंस है प्रोटॉन के साथ, ये डिस्टेंस ये बहुत ही कम है. तो नेगेटिव और पॉजिटिव में क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. जैसे ही हम सेकंड ऑर्बिट में गए, थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ गया. डिस्टेंस बढ़ गया तो हमारी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गई. थर्ड में जाइए, डिस्टेंस और बढ़ गया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और
और बढ़ गई, ठीक है। ऐसे ही हम फोर्थ में जाते हैं, तो फोर्थ ऑर्बिट विद रिस्पेक्ट टू दिस न्यूक्लियस, ये जो हमारा फोर्थ ऑर्बिट है, यहाँ पे हमारा और डिस्टेंस बढ़ गया, डिस्टेंस बढ़ने के कारण हमारी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गई। अब ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है जो फोर्थ ऑर्बिट में है, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन है हमारे न्यूक्लियस के साथ लूजली अटैच है, लूजली अटैच, क्यों? क्योंकि इसका इसके साथ फोर्स अट्रैक्शन ही नहीं है, ये लूजली अटैच है। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन को इसीलिए क्या बोला जाता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो जिस एटम में ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं वो एटम हमारी क्या है? इलेक्ट्रिकल को कंडक्ट करेगी। क्यों करेगी? बिकॉज ऑफ दिस फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सो कॉपर की एक जो छोटी सी कॉपर का एक छोटा सा एलिमेंट है वो बहुत सारे एटम से मिलकर बना होता है। तो एक एटम में, हर एक एटम में एक फ्री इलेक्ट्रॉन है। अगर वहां पे 100 एटम्स हैं तो कितने फ्री इलेक्ट्रॉन मिल गए हमें? 100। तो वो 100 फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? सो दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिसिटी। इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण हमें, हमारी जो एटम है, जो सब्सटेंस है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है बिकॉज ऑफ दिस फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सो ये हमारी थ्योरी, इतना समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि कोई भी एटम है वो न्यूट्रल वाइज, नेचर वाइज न्यूट्रल होती है, लेकिन ये जो लास्ट जो हमारे आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है, अगर वो इनकम्प्लीटली फिल्ड है और वहां पे इलेक्ट्रॉन्स है तो ये हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये न्यूक्लियस के साथ लूजली अटैच है। अब इस इलेक्ट्रॉन को हम क्या कर सकते हैं? लूजली अटैच है, इसको हम क्या कर सकते हैं? इस इलेक्ट्रॉन को यहां से रिमूव कर सकते हैं, यहां से रिमूव कर सकते हैं बाय गिविंग सम एनर्जी। इसको थोड़ी सी बाहर से एनर्जी दो, ये जो इलेक्ट्रॉन है हमारा यहां से रिमूव हो जाएगा, क्योंकि ये न्यूक्लियस के साथ प्रॉपर अटैच नहीं है, लूजली अटैच है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? यहाँ पे क्या बन जाएगा? होल। ये तो हम करेंगे, हम दे रहे हैं एनर्जी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, अदरवाइज नेचर वाइज वो न्यूट्रल है कॉपर। तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। और फॉर एग्जाम्पल ये जो इलेक्ट्रॉन है हमारा यहाँ चला गया मूव करके। अब ये जो बॉडी है, ये जो कॉपर है, ये जो कॉपर का एटम है, ये तो आपका चार्ज एटम है, चार्ज बॉडी है अब ये, क्योंकि इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को हम रिमूव ना करें, नहीं करते मान लो, तो कितने है? 29 इलेक्ट्रॉन है, 29 प्रोटॉन है, तो नेट चार्ज क्या हुआ इसके ऊपर? 0। लेकिन मैंने एक रिमूव कर दिया, तो अब ये हमारी जो बॉडी है वो कौन सी बॉडी है? चार्ज बॉडी है। नाउ दिस इज चार्ज बॉडी। कोई भी जो चार्ज बॉडी है वो कुछ ना कुछ काम करने की कैपेसिटी रखती है। द कैपेसिटी ऑफ टू डू वर्क बाय अ चार्ज बॉडी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जब भी हमारी बॉडी चार्ज होगी वो कुछ ना कुछ काम करेगी। काम यहाँ पे क्या हुआ? हमने एनर्जी दी, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव कर गया, इसके ऊपर चार्ज आ गया, यहाँ पे कुछ ना कुछ काम हुआ, ये इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ। तो इस बॉडी ने कुछ ना कुछ काम किया। जो ये काम करने की इसकी क्षमता है, इसका जो, इसे कहते हैं पोटेंशियल। द कैपेसिटी ऑफ चार्ज बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, इस तरह से हमारा जो है कोई भी एटम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है। अगर हम किसी भी एटम को इलेक्ट्रॉन देते हैं या रिमूव करते हैं, देने से उसके ऊपर पॉजिटिव, सॉरी, इलेक्ट्रॉन देने से उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन रिमूव करने से एटम में से उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। जब भी बॉडी चार्ज होगी तो ये कुछ ना कुछ काम करेगी। इसी काम करने की क्षमता को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो दिस इज द एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, सो हमारे ये हमारी एटॉमिक स्ट्रक्चर थी। ठीक है, हमें पता है इलेक्ट्रिसिटी दो तरह की है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये हम जस्ट बेसिक डिस्कस कर रहे हैं। वी विल डिस्कस इन डिटेल टाइप्स ऑफ करंट, फ्रॉम वेयर वी गेट एसी, फ्रॉम वेयर वी गेट डीसी। सो दिस इज कॉलेज नेम सीपीसी। CPC Kaduma. So there are two type of electricity, that is AC and DC. AC means alternating current, DC means direct current. Alternating current हमारे जो घरों में आ रहा है, that is AC. This is direct current. If I am going to a waveform, show to a waveform on this axis, we always represented time on this axis.
we are going to represent current and voltage, current or voltage. So according to time, this current is sinusoidal. Here मान लेते हैं यहाँ पे मैंने करंट ले लिया, तो इस एक्सिस पे क्या है हमारा टाइम. Here current is 0. Now current increasing from 0 to positive maximum value, again 0. Now increasing in maximum in negative, again 0, positive again. ऐसे आपका जो ये करंट वेवफॉर्म इस तरह से होती है, साइनोसॉइडल वेवफॉर्म मिलते हैं. अल्टरनेटिंग करंट is a current which change its direction and magnitude with respect to time. देखो पहले पॉजिटिव साइकिल देन नेगेटिव. किसी भी टाइम पे देख लो इसकी वैल्यू चेंज हो रही है. यहाँ पे देख लीजिए T1 पे कुछ और है, T2 पे कुछ और है, T3 पे कुछ और है. सेम इसी तरह अगर हम डीसी की बात करें, सो ऑन दिस एक्सिस आई एम गोइंग टू कंसीडर टाइम, ऑन दिस एक्सिस सेम करंट. इसका जो वेव फॉर्म है इस तरह से होता है डायरेक्ट. इसकी वैल्यू है जो कांस्टेंट है. इट डीसी करंट डज नॉट चेंज इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम. डीसी हमारा कांस्टेंट. क्लियर है? ये मेजर डिफरेंस है. दिस इज करंट. ये आपको पता होना चाहिए वेवफॉर्म. लेकिन ये वेवफॉर्म कैसे बनती है ये भी हम डिस्कस करेंगे जैसे जैसे हम डिटेल आगे जाएंगे प्रोग्राम. सो एक और डिफरेंस है, AC current can be step up, step down with the help of transformer, but DC cannot step up, step down with the help of transformer. DC पे हमारा ट्रांसफार्मर यूज नहीं होता, AC पे होता है. AC can be transfer from one place to another by using transformer. इसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं from one place to another. DC को नहीं करते. अल्टरनेटर इज अ डिवाइस. अल्टरनेटर एक डिवाइस है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल कन्वर्जन डिवाइस है. अल्टरनेटर इज अ डिवाइस विच प्रोड्यूस AC. DC हमें कहां से मिलता है? बैटरी इज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ DC. देन रेक्टिफायर, ओके, बैटरी, रेक्टिफायर एंड DC जनरेटर, ये हमें मिलता है AC जनरेटर. सो देयर आर टू टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, AC एंड DC. जस्ट मैंने आपको एक बेसिक सा डिफरेंस बनाया है. आपको पता होना चाहिए दो तरह का करंट होता है, AC और DC. हमारा जो मैक्सिमम हम यूज कर रहे हैं, हमारे घरों में जो सप्लाई आ रही है वो AC आ रही है. जो आपके मोबाइल चल रहे हैं वो बैटरी पे चल रहे हैं, दैट इज DC. वो DC सप्लाई पे चल रहे हैं, बैटरी से हमें DC मिलता है. क्लियर है? तो नाउ मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? अभी मैंने बात करी थी व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. दोबारा मुझसे फिर ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल व्हाट इज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल? अभी मैंने बताया द कैपेसिटी ऑफ अ चार्ज बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. एक चार्ज बॉडी की कार्य करने की समर्था को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं. इसे आप लिख भी सकते हो, द कैपेसिटी ऑफ चार्ज बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. देखिए द कैपेसिटी ऑफ charge body to do work is called electric potential. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. अब मैंने वहां पे एटॉमिक थ्योरी में बताया था मैंने आपको, जो बोहर ने बताया था हमें, हर एटम
कुदरती तौर पे क्या होती है, न्यूट्रल होती है। लेकिन वो चार्ज कब होती है, या तो उसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लो या इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर दो। अब आपको क्लियर हो गया कि चार्ज बॉडी क्या है। व्हाट इज चार्ज बॉडी? चार्ज बॉडी का मतलब है या तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है या पॉजिटिव चार्ज है। नेगेटिव कब आएगा? जब उसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे ज्यादा, उनको इलेक्ट्रॉन सप्लाई किया जाएगा। पॉजिटिव कब आएगा? पॉजिटिव जब हम उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे। तो कैसे पता लगता है कि कितना काम हुआ, बट कितना हमारा पोटेंशियल, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कितना है? सो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल दैट इज कितना काम हुआ है, वर्क डन अपॉन चार्ज। सो वर्क डन मेजर इन joules, charge measured in coulomb. The electrical potential, the unit of electrical potential is denoted by voltage V. So we can say that V is equal to joules per coulomb. If there are, if यहां पे अगर 1 जूल काम हुआ है, कितना चार्ज लगा उसमें काम होने में? 1 कूलम। देन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कितना है? 1 वोल्ट। 1 जूल 1 कूलम 1 वोल्ट। हमें कैसे पता लगा कितना इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है? वर्क डन अपॉन चार्ज। कितना काम हुआ, वर्क डन को मेजर करते हैं जूल में, और कितना चार्ज, दैट इज मेजर्ड इन कूलम। अगर 1 जूल का काम हुआ है, कितना चार्ज लगा उसमें हमारा? 1 कूलम। देन वी कैन से दैट देयर इज अ 1 वोल्ट। कितना पोटेंशियल है वहां पे, कितना इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है? देयर इज अ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ऑफ 1 वोल्ट। कोई भी चार्ज बॉडी है वो काम करेगी, उसको उसकी काम करने की कैपेसिटी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। कितना काम हुआ है, दैट इज वर्क डन अपॉन चार्ज। काम को किसमें मेजर करते हैं? जूल में। चार्ज को किसमें करते हैं? कूलम में। अगर 1 जूल काम हुआ है 1 कूलम, तो कितना वोल्ट? 1 वोल्ट। देयर इज अ 1 वोल्ट of electrical potential. So we will start from potential difference in next lecture. We will resume from here. ठीक है, यहीं से शुरू करेंगे, हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस। थैंक यू वेरी मच।